बताओ मुरली, तुम्हारा क्या, तुम तो बहुत प्रयोग करते हो, बताओ क्या प्रयोग किए हो? मेरी जो प्रयोग है वो इससे रिलेटेड है कि स्टूडेंट के अंदर जो एक स्टेज फियर होता है ना, उसको कैसे थोड़ा कम करें। ये काम तो तुम पुदार सर के लिए छोड़ दो। तुम नेटवर्किंग का देखो भाई, तुम नेटवर्किंग देखो, साइबर सिक्योरिटी देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग देखो। तो स्टेज फियर के लिए पुदार सर नहीं कर पा रहे हैं। नहीं सर, सारे लोग करते हैं। हाँ तो फिर भी बच्चों को पिक करना होता है किसमें है डेवलप। इसलिए जब 1 by 1 स्टूडेंट आगे आता है ना, कुछ वो करके दिखाता है या कुछ किसी क्वेश्चन का आंसर करके दिखाता है, उस वक्त समझ में आता है। अरे कितना भी स्टेज फियर होगा, अगर हमको आंसर पता है तो हम बता देंगे। हाँ, ये बात तो होती है सर। अगर आंसर नहीं पता है तभी दिक्कत है। एंड अगर मैं टेक्निकल पार्ट की बात करूँ तो AWS अभी कंप्लीट किया है मैंने। यहाँ पर एक पॉइंट हम क्लैरिफाई करते हैं। ओवर हियर व्हाट आई हैव सीन इन हिज वीडियोस दैट he records the videos in English, he starts the video in English, and he ensures that the class also responds in English. Maybe that is the point why this stage fear thing is happening, because student maybe he is able to respond, but then he wants to respond in Hindi, but Murli sir is conducting the entire quiz session and the Q&A session in English. So that's where students are having the stage fear. I'll suggest you to use Hindi in your Q&A. In case of practical, You use Hindi? in case of practical, the student has not to say anything. हाँ He has to just perform the practical. हाँ In that case also, I have seen that the finger is trembling. हाँ। और उसको लैब में 2 घंटा एक्स्ट्रा बैठाओ और इसको क्या नाम है, अरुणेश कुमार को उसको जिम्मा दे दो, उसका रिपोर्ट बना करके उसका फिंगर जब ठीक हो जाएगा तो वीडियो बना के तुमको भेजेगा। समझ गए? कुछ इसको काम दिया करो, ठीक है? इसका भी इधर में वजन मेरी तरह बढ़ गया है, हैं? तो ये उसका रिकॉर्डिंग करेगा ना, कि लैब में अगर कोडिंग करेगा तो फिंगर फिर क्या ट्रम्बल करेगा, हाँ? या तो वो कोड नहीं कर रहा है, हाँ? और या उसका वीडियो कम बन रहा है। ज़्यादा वीडियो बनेगा, ज़्यादा कोड होगा, सब ट्रम्बलिंग ठीक हो जाएगा, हाँ? सब स्टेज फैक्टर और फियर फैक्टर और इंटरव्यू फियर फैक्टर सब दूर हो जाएगा। कैप्चर देम, द मोर दे आर इन लाइमलाइट द मोर दे विल बिकम कॉन्फिडेंट। लाइमलाइट में बच्चों को लाइए, जो बच्चे लाइमलाइट में नहीं आते हैं, जो पीछे की सीट पे बैठते हैं, उनको लाइमलाइट में लाइए। द वे ही इज कंडक्टिंग द क्विज इन इंग्लिश, आई शो यू द वीडियो। कब लास्ट वही भेजे हो? हाँ, लास्ट की 2 वीडियो हैं, वो नहीं है सर। ये नहीं है, ये है। And in this batch there is assessment today, and this assessment is based on lucky question. Fine, and you will get your lucky question from this ball, in which I have kept many questions in this small slips. Fine, you have to pick one slip for your lucky. See, why I am saying that this is going to be more effective, because this is a real life use of English language in the IT class, okay? When Podar sir or Nilanjan sir or Sanjana ma'am conducts the class for English, they are supposed to teach English. But when Amit sir, I personally endorse Amit sir, because Amit sir is one faculty who ensures that he uses English in the class. And I have asked him several times that you have to also repeat yourself in Hindi, which he does. And I have got like complaint from students also that Shukla sir teaches in English. And I have explained the student that why it is important to teach in English. But then he has to repeat himself or explain himself in Hindi, which he does. But then at the prima facie, the first instance, teaching in English is also very important for student to get the concept directly in English language, which he has to write in English in the examination only. So this usage or this creating an environment in this manner is more important than teaching English language. Teaching English language can be done n number of time and n number of classes, and we have been doing this thing since last several years, and we will keep on doing the thing. But ultimately we require a supportive and conducive environment for English language, and the environment can be created by the students and with the help of the teachers. In the class only, and outside the class also. If it is outside the class, it is even better. Inside the class has to be achieved. Bonus would be outside the class in the campus. And if it can continue outside the campus, that's super achievement. But environment is required. I see Nitish sir creating that environment. Many a times I see him. He speaks very good English in the class and he then repeats the same thing in very good Hindi. इनका हिंदी बड़ा सुंदर है, खास तौर पे जब ये अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं, ठीक है? तो बट बच्चों को समझ में भी आए, ठीक है?
इसलिए आप अपनी बात को इंग्लिश में पूरा का पूरा पढ़ाइए। पहला लेसन इंग्लिश में ही दीजिए। फर्स्ट explanation, first concept you have to give in English only. If you are quoting any definition, any scholar, any subject matter expert, probably you would do the quote in English only because he has quoted in English only. So how can you do the translation? Translation never justifies the exact quote. Okay. So you have to do it in English. Then you, for the explanation purpose, you switch to Hindi. So this creation of environment in English is much more important than conducting workshop for overcoming fear and all that we have been doing. But till the time students start using English in a real time environment, English will remain a distant dream. जब तक आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं आप अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। जैसे ही आप अंग्रेजी का इस्तेमाल शुरू करते हैं तब आप अंग्रेजी सीखते हैं। पोदार सर पढ़ा सकते हैं, इस्तेमाल आपकी क्लासेस में अगर होता है तो वहाँ पर आप इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे आप इंग्लिश का इस्तेमाल करवा रहे हैं, प्रयोग करवा रहे हैं। आई होप मेरा बात आप लोग सबको पहुँच रहा होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मायने रखता है। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट की बच्चियाँ, नॉटर डेम कॉन्वेंट स्टूडेंट्स आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश नॉट बिकॉज they are speaking English in the English classes or not because of their English teachers, but they are studying history, they are studying geography, civics, chemistry, physics, all subjects they are studying and they are responding, they are asking questions and the teachers are explaining in English. That is the reason. We don't have this liberty and we don't say that we would be doing this thing, that we would be exclusively explaining or teaching in English. We would be probably using English for only 25% of the time. हम लोग मात्र 25% ही अंग्रेजी का प्रयोग करें, वो 25% प्रयोग भी नहीं होता है। वो कुछ ही शिक्षक हैं जिनका मैं नाम अभी लिया, अमित सर का हो चाहे नीतीश सर का हो। अभी ये मुरली को मैं देख रहा हूँ कि ये अंग्रेजी का प्रयोग कर रहा है, अच्छा लगता है। कभी हो सकता है कि इससे कुछ गलती भी हो जाए, लेकिन वो अंग्रेजी में थोड़ी गलती होना वो क्षम्य है, प्रयोग होना ज़्यादा। और गलती तो हम भी करते हैं, गलती तो पोदार सर भी करते हैं। मैं स्टूडेंट को ये भी गाइड करता, देखो बच्चे मैं जो लिखवा रहा हूँ या तुम जो खुद से लिख रहे हो उसमें तुमको हार्ड वर्ड जहाँ भी आता है ना बस उसको अंडरलाइन करो, उसके स्पेलिंग को तुम बाद में देखो इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या है। ऑटोमेटिक ग्रेजुअली तुम्हारा वैकैब बढ़िया होगा और तुम्हारा इम्प्रूव करेगा। अगर ये सोचते हो ना कि बस मुझे 2 क्लासेस इंग्लिश की मिल जाए और मैं इंग्लिश सीख जाऊँ, नहीं हो पाएगा। 2 नहीं 20 क्लास में भी नहीं होगा। चलिए, तो ये तो तुमने वीडियोस बनाए हैं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये वर्चुअल मशीन पे ये सारा सीरीज नहीं, ये पूरा का पूरा क्लाउड पे चला है। वर्चुअलाइजेशन था, ये दूसरी वर्चुअल मशीन है। और क्या क्या बताओ हमको, ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा, टाइम बचेगा। AWS से रिलेटेड है, डिफरेंट बच्चों ने AWS पढ़ाए, क्या रिस्पॉन्स मिला? बढ़िया, स्टूडेंट्स आर हैप्पी। अब आप लोग के बीच में ये बताना चाहूँगा, आप सारे बच्चों को बता सकते हैं, प्रोबेबली सिमेज इज द ओनली इंस्टीट्यूशन वेयर वी आर कंडक्टिंग क्लासेस फॉर AWS। AWS स्टैंड्स फॉर अमेजन वेब सर्वर। हाँ अमेजन वेब सर्विसेज, तो उसमें सर्वर का ही सर्विस देता है ना वो वहाँ। हाँ तो लेकिन खैर अमेजन वेब सर्विसेज बोलना है। तो अमेजन वेब सर्विसेज जो है, ये अमेजन इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन वो कंपनी जो है वो आज अगर उसका AWS हटा दीजिए तो वो लॉस में है। AWS के कारण इतना बड़ा अमेजन जो एंटरप्राइज है, जो एम्पायर है, वो प्रॉफिट में है। और AWS में क्लाउड है, AWS में पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है वो बदल जाता है। कंपनियां अपने आप को पूरा शिफ्ट कर रही हैं, AWS पे जा रही हैं। कुछ कंपनियां जो हैं वो और दूसरे क्लाउड प्लेटफॉर्म पर भी जाती हैं। माइक्रोसॉफ्ट का अजूर प्लेटफॉर्म है, गूगल का GCP गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है। हाँ, और भी कंपनियों के क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन AWS एक बहुत प्रोमिनेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म है। अजूर एक बहुत प्रोमिनेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म है। और हम लोग अभी सिमेज में AWS पे कोर्स करवाए, और मैंने जो थोड़ा बहुत फील किया कि बच्चे जो हैं उस चीज़ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं और जॉब है इस सेक्टर में। AWS जानने वालों की डिमांड अभी बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है। और अमेजन जो सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम कराता है AWS का, उसका ही चार्ज 40,000 रुपये ले रहा है। तो हम अपने बच्चों को जो है इसका तो कोई हम लोग अलग से अतिरिक्त शुल्क कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं, तो ये बच्चों को इसका लाभ मिले। और कोई चीज़ अभी इधर में हुआ है मुरली? नहीं, रिसेंट में तो बस AWS से रिलेटेड डिफरेंट पीपल नहीं सर। वो कुछ तुम बच्चों को हार्डवेयर रिलेटेड भी क्लास करवा रहे थे? हाँ सर, वो जो मदरबोर्ड वगैरह हम देखे कि हाँ, उसकी 2 वीडियो डाली है। सॉरी, मैं खुद ही भूल गया था। हाँ, तो वो उसमें है। एक्चुअली क्या है कि जब हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ाते हैं ना, तो उनको हार्ड ड्राइव के बारे में बताते हैं या किसी और चीज़ के बारे में।
बट जब उनको मेरे पास दिखाई करीब करीब अभी 100-150 सिस्टम का हार्डवेयर जो है वो ऐसा है जिसको कि बनवाना है, रिपेयर करवाना है, या उसमें वो हो सकता है जंक हो गया हो। तो हम सोचते हैं कि उसको हम किसी रिसाइकिल कबाड़ी जिसको कहते हैं उसको बेच सकते हैं, और या तुम्हारे लैब के लिए जितना तुमको काम का हो तुम ले लो। बच्चे उस पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं, उसको असेंबल डिसेंबल और उसको पूरा जितना उसको करना चाहें। और या कुछ बच्चों को उसमें से कुछ सामान जो है अन्वेश बच्चों को मुरली सर को पहले सब सामान दिखा करके और फिर मुरली सर और पोदार सर की अध्यक्षता में समान रूप से समानुपातिक रूप से जिस बच्चों को जो चीज़ की सुविधा लेनी हो, हार्ड डिस्क ले जाना हो, रैम ले जाना हो, मदरबोर्ड ले जाना हो, ख़राब है कोई उसमें कुछ उसका हम मूल्य बच्चों से 1 रुपया नहीं ले रहे हैं, ले जाओ, एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए ले जाओ, प्रयोग करने के लिए ले जाओ। जो बच्चा कभी नहीं इसको देखा है, मदरबोर्ड कैसे लगता है, उसमें रैम कैसे लगता है, उसमें हार्ड डिस्क कैसे लगता है, सीखने के लिए ले जाए। बच्चों को वो हम इशू कर देते हैं। अगर हम उसको कबाड़ी में बेचेंगे तो हो सकता है कि सब बेच बाच करके हमको 1-2 लाख रुपए मिलेगा मुश्किल से। बच्चे ले जाएं, ज़्यादा सीख लेंगे, ठीक है। और वो मतलब कुछ बच्चे लोग सब सामान ले जा करके मिल करके सिस्टम असेंबल करना, डिसेंबल करना, वो सारा चीज़ उसमें से प्रयोग करेंगे, सीखेंगे। हार्डवेयर लैब का ही जनरली ये सब चीज़ लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन वो हम बच्चों को इशू करने को हम सोचते हैं कि एक अच्छा विचार रहेगा, बजाय कि हम कबाड़ी को दें, कबाड़ी उसको स्क्रैपर को ले जाके बेचेगा। बच्चे जो हैं उससे बहुत कुछ समझ और सीख जाएंगे। वो खासकर उनको मजा भी आता है किसी डिवाइस को ओपन करना, लाइक हार्ड ड्राइव है, उसको ओपन करके अंदर का प्लेटर देख लेंगे। हाँ, पूरा देख लेंगे कि कैसे उसमें क्लस्टर घूमता है, हाँ कैसे, हाँ सारा चीज़ वो समझ जाएगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है। हाँ, बट उसको बोलिएगा कि फिर उसको जब कहीं फेंकेगा तो वो रिस्पॉन्सिबली फेंकेगा, इधर उधर उसको ई वेस्ट है उसका ध्यान रखेगा, ठीक है। ठीक है फिर, थैंक यू मुरली, गुड। एक बार इसके लिए क्लैपिंग हो जाए भाई।